Hello, everyone. I'm your host, Pooja, and I welcome all of you all to the Sunscreen Mask Special podcast. In today's podcast, we're going to be discussing a lot more about the usage of sunscreen and how we can keep our skin protected around the year. Especially with the onset of summer and the rising population, the sun exposure is affecting the skin and the health of the overall body. In today's podcast, we're going to be discussing and unveiling mysteries around the superhero sunscreen and exploring how we can have clearer and healthier skin. So, if you're a skincare novice or a seasoned enthusiast, this podcast is surely going to be informative and empowering for all of you all. To educate us more about this topic of sunscreen, we have amongst us a very renowned dermatologist and cosmetologist, Dr. Swapnil Sanghvi from Mumbai with us. Dr. Swapnil, welcome to the Sunscreen Mask podcast. Thank you, Pooja. Hi. Thank you, Doctor. Yeah. So before we really deep dive and talk about this podcast today, Doctor, we wanted to know a little about your journey and what really inspired you to become a doctor and specialize in dermatology. Yeah. So I'm Dr. Swapnil Sanghvi and I practice in Borivali, Mumbai. I practice both clinical dermatology and cosmetology. So when I think about my early years, so when I passed out my 12th, I was really confused which field I should think about going into. But then talking to people always inspired me, it motivated me, and I realized that I am a very good listener. Mhm. And people like to talk a lot. People like someone to listen to them, know their problems, and give some solutions to them. So I realized that being a doctor is something that really excites me, and I started down this journey. Coming specifically to dermatology, I realized that this is a very upcoming branch. Mhm. I've always wanted a branch where there are less emergencies, and this is something that suited me. And so, yeah, I think it's because of the great demand of dermatology and my need to help out people is why I selected dermatology as a branch. Yeah. Wow, that's quite Yeah. inspirational, Doctor. Thank And you. I'm sure while you're a great listener, we are looking forward to listen a lot of Yeah. information from you Thank you. today. सो डॉक्टर सीधा ही मुद्दे पर आते हैं. पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशली इस क्लाइमेट कंडीशन में बहुत सन एक्सपोजर हो रहा है. सो व्हाई इज सनस्क्रीन रियली इम्पोर्टेंट? सी ओवरऑल पूरी दुनिया में और खास करके भारत में एक मिथ है कि सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए हमने. एंड अभी हम सुन रहे हैं कि सनस्क्रीन इतना ज़रूरी है. तो सच क्या है वो हम जानने का ट्राई करेंगे आज. सच में साइंस में अगर देखें तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है. एंड बहुत सारे रीजंस है इसके. एक तो अगर सन के बेनिफिट्स जितने हैं, साथ में हम ये भूल जाते हैं कि उसके हार्म्स भी बहुत हैं. सो उसका नुकसान भी बहुत होता है. सन एक्सपोजर की वजह से कैंसर होने का रिस्क है. स्किन में बहुत सारे कैंसर्स है जो सन की वजह से होते हैं, सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं. दैट इज़ वन. दूसरा, आजकल हमें एजिंग का बहुत डर लगता है. तो अगर एजिंग का मेन रीज़न देखें तो सन एक्सपोजर है. सो जितना जितना हम धूप में बाहर जाते हैं बिना प्रोटेक्शन के, फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, स्पॉट्स आते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. बट हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए. तो सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बिना ये कर ही नहीं सकते हैं. थर्ड, आजकल अगर हम भारत में देखें तो सबको डार्क स्किन अवॉइड करना है. पिगमेंटेशन इज़ अ वेरी बिग इशू. किसी को भी टैन नहीं होना है. तो इसके लिए भी अगर एकमात्र सोल्यूशन है तो ये सनस्क्रीन है. तो सनस्क्रीन के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे मिथ्स भी है जो हम तोड़ने का ट्राई करेंगे इस शो में. बिल्कुल. या बिल्कुल डॉक्टर. सो आपने ये तो बता दिया कि सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है, करेक्ट. पर अगर हम बाहर जाते हैं सनस्क्रीन खरीदना चाहते हैं तो बहुत तरह की सनस्क्रीन्स हैं, जी. केमिकल है, फिजिकल है. सो हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड विच सनस्क्रीन टू बी यूज्ड फॉर विच टाइप, स्किन टाइप, एनीथिंग जो आप इस बारे में बताना चाहते करेक्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली. आजकल इंस्टाग्राम में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे तो जनरल पब्लिक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें हम, क्या ले, बिकॉज इतना सारा इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट है. बट अगर बेसिक देखें तो फिजिकल सनस्क्रीन होता है, केमिकल सनस्क्रीन रहता है और एक मिक्स्ड सनस्क्रीन रहता है. सो केमिकल सनस्क्रीन में वैसे कुछ केमिकल्स हैं, हम ऑर्गेनिक केमिकल्स बोलते हैं, जो क्या करता है, सूर्य की जो किरण है, यूवी रेज बोलते हैं हम, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्किन तक पास ऑन नहीं होने देता. भी फिजिकल सनस्क्रीन में क्या होता है, वैसे कुछ सॉल्ट्स है. दो कॉमन सॉल्ट्स ये है, एक जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं.
तो ये सॉल्ट्स थोड़े केमिकल से डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं एंड जो यूवी रेज गिरते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके एंड मिक्स्ड में फिजिकल और केमिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके अभी कौन सा कहाँ यूज़ करना, अगर फिजिकल सनस्क्रीन का बेनिफिट देखें तो उसमें केमिकल्स नहीं होने से साइड इफेक्ट्स का रिस्क बहुत कम है। ओके बट क्योंकि वो सॉल्ट्स है तो वो एक वाइट कास्ट बना देते हैं स्किन पे। ओके तो अगर आपने देखा है क्रिकेट मैचेस में, पुराने क्रिकेट मैचेस में पूरा वाइट हुआ रहता था जी फेस सबका। जी तो पहले के फिजिकल सनस्क्रीन्स वैसे रहते थे जो दिखने में अच्छे नहीं दिखते थे, बट Okay. प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता था। ओके अभी टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते अभी वैसे फिजिकल सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। दे आर कॉस्मेटिकली वेरी एलिगेंट ओके एंड दे गिव गुड प्रोटेक्शन एज वेल। ओके केमिकल सनस्क्रीन के साइड इफेक्ट है थोड़े कि वो साइड इफेक्ट एलर्जी होने का रिस्क है, कभी कभी स्किन में अब्जॉर्ब हो सकता है। जी कोई कोई केमिकल से तो कैंसर का भी पाया गया है। ओके बट केमिकल सनस्क्रीन के बेनिफिट्स ये है कि उनका प्रोटेक्शन बेटर रहता है। ओके एंड आजकल के जो सनस्क्रीन्स है उसमें मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स रहते हैं। तो अगर बच्चों के लिए हम देखें, एकदम छोटे बच्चे हैं तो फिजिकल सनस्क्रीन्स प्रेफर करने चाहिए। बड़ों के लिए अगर हम देखें तो केमिकल सनस्क्रीन्स पहले यूज होते थे, अभी मिक्स्ड सनस्क्रीन बेटर है सबके लिए। ओके जी सो डॉक्टर आई थिंक आप बात कर रहे थे अबाउट हैविंग सॉल्ट्स इन द सनस्क्रीन। सो करेक्ट। व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स जो हमें Yeah. देखने चाहिए सनस्क्रीन में व्हाइल चूजिंग द राइट सनस्क्रीन फॉर द स्किन टाइप? करेक्ट। सो अगर आप सनस्क्रीन का इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं जी तो जो खास चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वैसे नाम पाए जाएंगे जैसे ऑक्सीबेंजीन बोलते हैं, ओके या तो बेंजोफिनोन के नाम पे है, बेंजोफिनोन 3 दैट इज़ वन। ओके एक ऑक्टिन ऑक्साइड दिखेगा आपको, एक एवोबेंजोन दिखेगा, जिंक ऑक्साइड दिखेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जी बट हम कुछ कुछ खास इंग्रेडिएंट्स पे जी फोकस करेंगे ताकि हम इजी कर सकें। बिल्कुल सो ऑक्टिन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल फिल्टर है जी जो सेफ है। ओके तो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स विल हैव ऑक्टिन ऑक्साइड एंड वो अच्छा है। ओके बेंजोफिनोन 3 करके एक है जिसका अदर नाम ऑक्सीबेंजोन है। ओके उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है। सो अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में वो बैन हुआ है। अच्छा सो इट इज़ नॉट अलाउड इन सनस्क्रीन्स। देयर आर सम रीजंस फॉर इट। क्या होता है कि कभी कभी वो स्किन में एब्जॉर्ब होता है। ओके तो ऐसा भी रिसर्च में पाया गया है कि वो लगाने के बाद 30-40 मिनट्स के बाद यूरिन में भी वो केमिकल पाया जाता है। सो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन। उसके अगेंस्ट कैंसर के भी थोड़े से रिपोर्ट्स हैं। उससे एनवायरनमेंट को भी डैमेज होने का रिस्क है। तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट आइडियल, बट भारत के सनस्क्रीन्स में पाया जाता है, कुछ कुछ सनस्क्रीन्स में। तो अगर आप अवॉइड कर सके तो बेंजोफिनोन 3 या ऑक्सीबेंजोन वाले सनस्क्रीन्स अवॉइड करने चाहिए। ओके फिर एक एवोबेंजोन करके है जो अभी एक ये मैं बताना चाहूँगा, यूवी रेज में भी दो टाइप्स है मेजर, एक यूवी ए होता है और एक यूवी बी होता है। दोनों के फंक्शंस अलग हैं। यूवी बी जो है ना वो सन बर्न करता है। अगर आप बाहर जाएंगे, फेयर स्किन है, जी अगर आप बीच पे जाते हैं तो तुरंत स्किन लाल होने लगती है, बर्निंग होने लगता है, तो वो यूवी बी से होता है। यूवी ए क्या करता है, यूवी ए धीरे धीरे आगे जाके एजिंग करता है, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं। जो टैनिंग होता है वो भी यूवी ए से होता है। तो हमें सनस्क्रीन्स में ये भी ध्यान रखना है कि यूवी बी और यूवी ए के अगेंस्ट दोनों के फिल्टर्स होने चाहिए। ओके कभी कभी सिर्फ यूवी बी के फिल्टर्स रहे तो वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल तो एवोबेंजोन एक ऐसा केमिकल है जो यूवी ए के अगेंस्ट भी फिल्टर करता है, बट वो इतना स्टेबल नहीं होता है। जी बट दैट इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूल, सो वो होना चाहिए। जी अभी आते हैं फिजिकल फिल्टर्स पे। जी तो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये दो मेन फिजिकल फिल्टर्स हैं। एंड विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जी। आजकल वो बहुत अच्छे से ब्लेंड इन हो जाते हैं सनस्क्रीन जी में। तो वाइट कास्ट भी नहीं आता है और प्रोटेक्शन भी अच्छा आता है। सो वो भी होना चाहिए हमारे सनस्क्रीन में। एक और इम्पॉर्टेंट अभी के एस्पेक्ट्स में ये हो रहा है कि अभी हम जैसे रूम के अंदर हैं जी तो विजिबल लाइट भी काफ़ी होती है। यस जैसे ट्यूब लाइट्स में से है, एम्बियंट लाइट है, यस इंफ्रारेड रेज, जैसे हाउसवाइफ्स है, खाना बना रहे हैं, गर्मी है, तो गर्मी का भी इम्पैक्ट फेस पे काफ़ी होता है। तो अभी के सनस्क्रीन्स पे ये फोकस किया जा रहा है कि विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज के अगेंस्ट भी वो प्रोटेक्शन दे। ओके तो उसमें ये फिजिकल फिल्टर्स जो है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का हम ध्यान रख सकते हैं हमारे सनस्क्रीन में। बिल्कुल। So I Yeah. hope viewers you are taking a note of all this important information जो Correct. डॉक्टर ने अभी भी बताया। डॉक्टर एक और क्वेश्चन मेरा था कि इंग्रेडिएंट्स तो हम समझ गए, जी बट हम सनस्क्रीन को अगर चूज कर रहे हैं तो व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स, लाइक क्या एज कंसिडर होती है, स्किन टाइप कंसिडर होता है, या क्लाइमेट कंडीशन को कंसिडर करते हुए सनस्क्रीन चूज की जाती है? करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड हमारे पेशेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है कि डॉक्टर हम कौन सा सनस्क्रीन प्रेफर करें। सो सनस्क्रीन में एक तो टेक्सचर रहता है, उसका एक क्वालिटी रहता है। अभी सनस्क्रीन्स में क्रीम फॉर्म रहता है, लोशन फॉर्म रहता है, जेल फॉर्म में आता है, आजकल स्प्रे, आजकल इवन स्टिक फॉर्म में आ रहे हैं सनस्क्रीन्स। तो अगर हम स्किन टाइप से हिसाब से ले तो जिनका ऑयली स्किन है, जिनको एक्ने का ज़्यादा इशू है, पिंपल्स का ज़्यादा इशू है, उन्हें या तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स प्रीफर करने चाहिए या तो लोशन बेस्ड सनस्क्रीन्स प्रीफर करने चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो उससे ज़्यादा चिप नहीं लगता है, उससे ज़्यादा ऑयली नहीं लगता है, उससे पिंपल्स बढ़ने का रिस्क नहीं है। वरना कोई जो थिक सनस्क्रीन्स है उससे मुहासे बढ़ने का चांस है। तो ये हो गया ऑयली स्किन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। अभी किसी का स्किन बहुत ड्राई है, जिनको खुजली का इशू है, ड्राई स्किन का इशू है, विंटर्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम पाया जाता है, तो उनके लिए क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन्स बेटर है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट रहता है। तो दैट ऑल्सो वी शुड प्रिफर। अभी किसी का प्रोफेशन ऐसा है कि जिनको आए दिन बाहर जाना रहता है, दे आर ऑलवेज ऑन द रोड, दे आर रनिंग अबाउट, तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि हम फेस वॉश करके नया सनस्क्रीन लगाएं। सो फॉर देम स्प्रे सनस्क्रीन्स है जो सिर्फ आपने स्प्रे कर दिया एंड इट मेक्स अ लेयर ऑन द फेस। या तो स्टिक सनस्क्रीन है, तो स्टिक से सिर्फ आपने अप्लाई कर दिया एंड यू आर फिट टू गो। तो दीज आर एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ सनस्क्रीन्स, दीज आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसमें। बट स्किन टाइप के हिसाब से ही सनस्क्रीन सिलेक्ट करना चाहिए एंड इसके लिए आपको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई फील। यस, एब्सोल्युटली। डॉक्टर, एक और एक पॉपुलर थॉट है, जब हम सनस्क्रीन देखते हैं तो सबसे पहले टैग में एसपीएफ देखते हैं। जी। सो एसपीएफ क्या एग्जैक्टली है और कितनी अमाउंट की एसपीएफ इम्पोर्टेंट है? व्हाट शुड वी रियली लुक एट? राइट। सो एक तो एसपीएफ है जो बहुत प्रचलित है, मार्केट में सब एसपीएफ का ही बात करते हैं। एसपीएफ इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो एक ये पैरामीटर है जिससे सनस्क्रीन्स का क्वालिटी टेस्ट होता है। जैसे कोई भी कंपनी सनस्क्रीन लाता है तो उसके पीछे उन्हें रेगुलेशंस चेक करने रहते हैं, उनको क्वालिटीज टेस्ट करनी रहती है। बिकॉज सनस्क्रीन में अगर सन प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर वो क्रीम है, फिर तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर में क्या होता है, जो यूवीबी वाला कंपोनेंट है जो मैंने आपको बताया था, जो सनबर्न के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, जो कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, तो उसको कितनी हद तक वो बचाता है उसका एक मेजरमेंट है ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो समझिए सन एसपीएफ 15 है, तो जब हमने सनस्क्रीन लगाया है तो 15 टाइम्स, बेसिकली किसी ने सनस्क्रीन नहीं लगाया हो और लगाया हो, उनमें 15 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया और मैं बाहर जाता हूँ तो यूवीबी रेज जितने स्किन पे गिर रहे हैं, और किसी ने सनस्क्रीन लगाया है और वो बाहर जा रहा है तो 15 टाइम्स कम यूवीबी रेज गिर रहे हैं उनके स्किन पे। तो ये यूवीबी रेज के अगेंस्ट का प्रोटेक्शन का एक मेजरमेंट है। बट ये सिर्फ अलोन सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज यूवीए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है जिसको हम आसानी से मिस कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट एक यूवीए प्रोटेक्शन फैक्टर करके मेजरमेंट रहता है। या आप सनस्क्रीन्स में देखेंगे तो बूट स्टार रेटिंग करके रहता है, 1+, 2+, 3+, 4+ ऐसे पाया जाता है, जो हम इग्नोर कर देते हैं। बट वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारी स्किन टाइप पे, जो भारतीय स्किन है। अगर हम टाइप्स देखें स्किन में तो 1 से 6 तक होती है। तो 1, 2 जो है वो एकदम फेयर स्किन है, जो खास करके यूरोपियंस, अमेरिकन में रहती है। हमारी जो इंडियन स्किन है वो 3 to 6 है, तो ज़्यादा करके थोड़ी सी डार्क स्किन, ब्राउन स्किन, ये शेड्स में आती है। तो ये स्किन में टैन होने का रिस्क बहुत है, एंड यूवी रेज जो है, यूवी ए कंपोनेंट, वो टैन करता है। तो खास मैं सबको ये बताऊंगा कि आप बूट स्टार रेटिंग या यूवीए प्रोटेक्शन फैक्टर पे भी इतना ही ध्यान दीजिए, और सिर्फ एसपीएफ सफिशिएंट नहीं है, एसपीएफ कम से कम 30 के ऊपर होना चाहिए, एंड बूट स्टार या यूवीए प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 3+ के ऊपर होना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी सबको। बिल्कुल। सो डॉक्टर, सनस्क्रीन के बारे में हमने काफी जानकारी आपसे समझी, पर एक क्वेश्चन ये भी था हमारे व्यूअर्स का कि सनस्क्रीन लगाते कैसे हैं। सो एक सनस्क्रीन है जो मैं यूज कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अगर दिखा सकें कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई। जी, डेफिनेटली। सनस्क्रीन यूज करने का सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल ये है कि क्या हम सनस्क्रीन सही मात्रा में यूज कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज सनस्क्रीन, जैसे किसी भी पेशेंट को पूछे तो सनस्क्रीन आप यूज करते हैं, तो हाँ हम सनस्क्रीन यूज करते हैं। बट अगर हम देख रहे हैं तो टैन तो हो रहा है, एजिंग तो हो रहा है, तो क्या हम सही मात्रा में और सही तरीके में यूज कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो देयर इज अ रूल कॉल्ड एज 2 फिंगर रूल। अभी जैसे हम फिंगर्स ले तो ये 2 फिंगर्स हैं, तो हमने सनस्क्रीन आइडियली
one full finger and the other full finger. Okay. दिस इज 2 फिंगर रूल. इतना सनस्क्रीन हमने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाना है. Okay. तो ये होगा फेस, नेक और जो हाथ खुला है उतने एरिया में. Okay. तो सनस्क्रीन इतना यूज हो. सी अगर हम लिटरेचर देखें, अगर हम रिसर्च देखें, तो आइडियली 2 मिलीग्राम एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर में लगना चाहिए. Okay. अभी हम कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे जी. कि हम लगा रहे कि नहीं. तो ये एक अप्रोप्रिएट, एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है जिससे हम ये नक्की कर सकते हैं कि हमने ठीक से सनस्क्रीन लगाया है कि नहीं. बिल्कुल. तो सब ये खास ध्यान रखिए कि सनस्क्रीन लगाने में जितना ज़रूरी है उतना खास लगाइए. वहाँ हम कम करने जाएंगे तो हमें स्किन में जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा. बिल्कुल. सो डॉक्टर, सनस्क्रीन एप्लीकेशन तो हम समझ गए, जी. पर अगेन एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आ रहा था कि अगर हम मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करें? लाइक व्हाट इज द राइट वे? आजकल मेकअप भी सनस्क्रीन इन्फ्यूज्ड आ रहा है, सो व्हाट शुड बी रियली डन? या सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमारे पेशेंट्स कॉन्स्टेंटली हमें पूछते हैं बिकॉज आज कल प्रोफेशन वैसा है कि सब रेगुलरली मेकअप यूज़ करते हैं, राइट. एंड सो सनस्क्रीन, मेकअप इज़ एक्चुअली नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सनस्क्रीन. आजकल मेकअप में सन प्रोटेक्शन फैक्टर आता है. जी. सो कभी कभी ये पेशेंट्स में गलत फहमियाँ हो जाती है कि क्योंकि मेरे मेकअप में सनस्क्रीन है जी. तो मैं सनस्क्रीन अवॉइड कर दूंगा Yes. या कर दूंगी. बट वो सही रास्ता नहीं है. सनस्क्रीन को कोई सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता. Okay. सो सनस्क्रीन पहले हमें यूज़ करना है. सो नहाने के बाद, फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है तो सीधा सनस्क्रीन हमने लगा दिया, जैसे 2 फिंगर रूल से बताया वैसे. उसके ऊपर हम मेकअप लगा सकते हैं. सो दैट इज़ वन. अगर मेकअप में भी सन प्रोटेक्शन फैक्टर है तो वो एक एडेड बेनिफिट हो गया उसमें. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सनस्क्रीन ना लगाएं. आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है. जी. सो किसी को लाइट अगर फाउंडेशन लगाना है, ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जी. तो टिंटेड सनस्क्रीन बहुत अच्छा ऑप्शन है. टिंटेड सनस्क्रीन का और एक फ़ायदा ये है कि जो विजिबल लाइट है, जो गर्मी है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है वो. Okay. दूसरा, अगर पिगमेंटेशन है आपको, छाई है या छोटे छोटे स्पॉट्स है, फ्रेकल्स बोलते हैं हम, जी. तो उनको छुपाने के लिए भी टिंटेड सनस्क्रीन अच्छा काम करते हैं. Okay. यही है कि अगर जिनको पिंपल्स का इशू है, ऑयली स्किन है, उनको टिंटेड सनस्क्रीन्स अवॉइड करने चाहिए Okay. बिकॉज उनसे पिंपल्स बढ़ने का रिस्क है. Okay. अदरवाइज दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर जिनको पिगमेंटेशन का इशू है उनके लिए. Okay. या राइट. सो सनस्क्रीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. भले ही आप मेकअप इन्फ्यूज सनस्क्रीन लें, आपको सनस्क्रीन जरूर जी. अप्लाई करना है, बट डू कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स व्हाट इज रियली राइट आपकी स्किन के लिए व्हेन जी. इट कम्स टू मेकअप एंड सनस्क्रीन. सो डॉक्टर, एक और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि वीव अंडरस्टूड मेकअप हो गया है, सनस्क्रीन लगा ली है, बट व्हाट अबाउट स्वेट? राइट. यू नो, इट्स राइजिंग टेम्परेचर है, गर्मी है, स्वेट होने पर क्या हमारी सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट है, या डू वी हैव एनीथिंग व्हिच इज लाइक अ स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन? करेक्ट. सो हमारे देश में अगर आप एटमॉस्फेयर देखें जी. तो ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ इंडिया, राइट. और हमें ऐसा ही सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो. जी. जो वाटर रेजिस्टेंट क्या होता है, अभी हमने समझ तो लिया कि वाटर रेजिस्टेंट है, जी. बट उसका मीनिंग क्या है. तो वाटर रेजिस्टेंस में 2 टाइप्स रहते हैं. एक वाटर रेजिस्टेंट है जो 40 मिनट्स तक वाटर रेजिस्टेंट रहता है. उसका मतलब ये है कि अगर हम स्वेट कर रहे हैं फॉर 40 मिनट्स जी. या अगर हम पूल में हैं फॉर 40 मिनट्स, तो तब तक शुरुआत में जो उसका प्रोटेक्शन था और एट द एंड ऑफ 40 मिनट्स उसका प्रोटेक्शन बरकरार रहता है. राइट. दैट इज वन. अभी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट रहता है एक, या ज्यादा हाई पावर रेजिस्टेंट रहता है विच इज 80 मिनट्स ऑफ प्रोटेक्शन. Okay. सो बहुत लिमिटेड सनस्क्रीन्स है जो 80 मिनट्स का प्रोटेक्शन देते हैं. राइट. बट खास करके जो स्विमिंग कर रहे जी. हैं, जो वाटर के साथ इन्वॉल्व है, उन्हें जो हायर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स है वो यूज करने चाहिए. बट वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन जरूरी है क्योंकि स्वेटिंग से वरना उसका इफेक्ट कम हो जाता है. एंड हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने सनस्क्रीन लगा दिया है, जी. बट एक्चुअली में उसका असर नहीं हो रहा है. तो ये खास ध्यान रखना चाहिए हमें. एब्सोल्युटली. तो खास ध्यान रखें, जो भी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उसे फॉलो करें. डॉक्टर, एक और एक क्वेश्चन था. पहले के जमाने में आई थिंक स्किन केयर हम 40 के बाद शुरू करते थे, जी. लेकिन आजकल जैसा आपने कहा, यू नो, सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट एजिंग के लिए या जी. रिंकल्स के लिए. तो क्या करेक्ट टाइम है टू रियली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, स्पेशली सनस्क्रीन? और कोई सुझाव जो आप, यू नो, 20s या 30s के एज ग्रुप को देना चाहें? जी, एब्सोल्युटली. सो दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन. पहले फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के टाइम देखे तो स्किन केयर नाम की कुछ चीज़ नहीं थी. जी. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट. अभी एवरीवन इज वेरी अवेयर अबाउट इट एंड एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू दिस ट्रेंड, और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है. सो स्किन, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कोट कि आवर स्किन रिमेंबर्स एवरीथिंग दैट इज पुट ऑन इट एंड इट शोज इट्स इफेक्ट्स years later.
तो हमारे स्किन का एक मेमोरी रहता है एंड जी। हम कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं ना, वो याद रखता है स्किन। बिल्कुल। तो स्किन केयर रूटीन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सनस्क्रीन। हमने आज समझ लिया कि सनस्क्रीन कितना जी। ज़रूरी है, तो सभी ने सनस्क्रीन लगाना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर कॉस्ट फैक्टर, बजट फैक्टर। नेक्स्ट कम्स अ मॉइस्चराइजर। जी। सो अगर किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम आज उसमें नहीं जाएंगे, बट आपने अपने रूटीन में मॉइस्चराइजर इंक्लूड करना चाहिए। सो मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, अभी आता है क्लेंजर। जी। सो क्लेंजर या फेस वॉश, अभी ऑयली स्किन है तो उसका अलग क्लेंजर होता है, ड्राई स्किन का अलग क्लेंजर है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके एक अच्छा सा फेस वॉश या क्लेंजर आपके लिए सिलेक्ट करवा सकते हैं। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। 20s और 30s में मेरे हिसाब से, 20s में खास करके एंटी एजिंग का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ वेरी अर्ली। बट 30s जैसे शुरू होता है, हम एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो बहुत सारे एंटी एजिंग सीरम्स अवेलेबल है, खास करके मॉलिक्यूल्स है, जैसे रेटिनॉल है। रेटिनॉल बहुत अच्छा एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। विटामिन सी है। सो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग है ये, बट इसका भी एक खास ध्यान रखना है कि कौन से स्किन टाइप को कौन सा प्रोडक्ट सूट होगा। सो एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही स्टार्ट करिए। बट रेटिनॉल और विटामिन सी, ये दो इंग्रेडिएंट्स है जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने पेशेंट्स को एंटी एजिंग रेजिमेन में इंक्लूड करने के लिए। तो ये 4 है, एक मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, क्लेंजर हो गया और एक एंटी एजिंग सीरम। कितने से हम शुरू कर सकते हैं स्किन केयर रूटीन? सो स्किन केयर को बेसिक तरीके से भी किया जा सकता है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, टेक केयर ऑफ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिक्स का ध्यान रखें, बट डॉक्टर से सलाह लेकर ही सही तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज एज ही सेड, योर स्किन हैज अ मेमोरी ऑफ वट एवर यू पुट ऑन योर स्किन। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ये बताने के लिए। एक और एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा था कि आई रिमेम्बर पहले के जमाने में, जैसे आपने कहा कि सनस्क्रीन वाइट कास्ट वाली होती थी, एंड अभी बहुत एडवांसेस आ गए हैं। सो व्हाट इज द एडवांसेस दैट सनस्क्रीन टेक्नोलॉजी is really booming, और क्या इस बारे में बताएं? सो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं सनस्क्रीन में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फिल्टर्स है, जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो पहले जो वाइट कास्ट छूटता था उनसे, अभी वैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि उनके पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो रहे हैं। तो ये सिंपल वर्जन है नैनो टेक्नोलॉजी का, कि इतने छोटे हो जाते हैं कि वो लेयर नहीं बनाते, बट अपना प्रोटेक्शन देते हैं एंड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं वो बाकी सब केमिकल फिल्टर्स के साथ। सो दिस इज वन। आजकल सनस्क्रीन्स में एंटी एजिंग बेनिफिट्स, स्किन लाइटनिंग बेनिफिट्स, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, तो वैसे वैसे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे नियासिनामाइड बताएंगे, कोजिक एसिड बताएंगे, विटामिन सी बताएंगे, तो सनस्क्रीन्स में ही इंक्लूड कर रहे हैं अभी। तो 2 डिफरेंट, एक सीरम लगा लिया, एक सनस्क्रीन लगाया, उसके अलावा या तो उसके ऑल्टरनेटिव में बेटर सब्स्टिट्यूट इज कि एक ही प्रोडक्ट हमने लगा लिया जिसमें दोनों काम हो गए हमारे। तो ये भी एक अच्छा एडवांसमेंट है। आजकल ओरल सनस्क्रीन्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे हैं जो अंदर कंज्यूम जब हम करते हैं ना टैबलेट फॉर्म, तो सन का प्रोटेक्शन कम हो वैसे वो इफेक्ट देते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा ये कि हमें बार बार सनस्क्रीन्स नहीं लगाना पड़ेगा, एक हमने पिल खा लिया और हमारा सन प्रोटेक्शन हो गया। तो ये भी एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये बताना चाहूँगा कि अभी ये रिसर्च फेज में है, काफ़ी कंपनीज मार्केट कर रही है, बट साइंटिफिक बेसिस चेक करके ही हमने इन्हें अपनाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, but the future looks bright for sunscreens. Yeah. Wow, I'm clearly amazed with the future of sunscreen, doctor. Thank you very much हमें बताने के लिए. But I'm sure अगर आप स्किन केयर एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, so reach out to your doctors because they can really let you know कि क्या एडवांसेस हुए हैं और उसे आप सही तरीके से अपना सकते हैं. डॉक्टर, कुछ मिथ्स भी हैं हमारे व्यूअर्स के. तो मैंने आमतौर पे सुना है कि वो फिटकरी लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन क्या सही है हमारी स्किन के लिए? स्किन ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे एवरीवन इज एन एक्सपर्ट। सो सबके पास अपने अपने नुस्खे हैं, या तो फैमिली मेंबर्स बताते हैं या तो फ्रेंड ने बता दिया, बट हमारे पास आए दिन वैसे पेशेंट्स आते हैं जिनको साइड इफेक्ट्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल फिटकरी लगा दी, तो फिटकरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है और वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उससे बर्न्स होने का चांस है, एलर्जीज होने का चांस है, और इनकी वजह से जो मार्क्स रहते हैं उनको बहुत टाइम लगता है जाने में।
तो घरगुती इलाज मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। ओके मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं, हालांकि वो इतना इशू नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है, बट आपकी स्किन वो टाइम पे कैसी है, ड्राई है, सेंसिटिव है, वो हमें नहीं पता है। तो हम डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करते हैं कि कुछ हाउस होल्ड रेमेडीज करें आप। बिल्कुल। सो अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, होम रेमेडीज अच्छी होंगी, लेकिन आपकी स्किन के लिए क्या सूट करता है अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक और एक मिथ था डॉक्टर, स्पेशली लेडीज में, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उन्हें डर लगता है सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो जी क्या ये सच है? जी, मैं भी बहुत ज़्यादा ये प्रश्न फेस करता हूँ। एंड विटामिन डी का एक डेफिशिएंसी का एपिडेमिक चल रहा है इंडिया में। अगर आप किसी को भी देखेंगे, किसी का भी लेवल चेक करेंगे, सबको डेफिशिएंसी है विटामिन डी। विटामिन डी का कॉमन सोर्स सनलाइट है, जी उसमें भी यूवी रेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही नेचुरल है क्वेश्चन आना कि अगर मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँ तो विटामिन डी कहाँ से प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। सो अगर हम साइंस देखें तो विटामिन डी हमें प्रोड्यूस करने के लिए 30 to 35 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर चाहिए। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि फेस से ही हमें प्रोड्यूस करना है, राइट? बॉडी के कोई भी पार्ट से प्रोड्यूस हो सकता है वो। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल लेग्स हमारे ओपन है, आर्म्स हमारे ओपन है, तो फेस प्रोटेक्ट करते हुए भी विटामिन डी प्रोड्यूस हो सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन यूज करिए। विटामिन डी अगर आप सन एक्सपोजर लेते हैं तो विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाएगा। जो लोग सनस्क्रीन नहीं भी यूज कर रहे हैं उनको भी डेफिशिएंसी आ रही है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को सनस्क्रीन पर ब्लेम करना सही नहीं है। बहुत ही उम्दा बात की आपने डॉक्टर। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, सनस्क्रीन लगाने से ना भागे। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हैव इट क्योर्ड। सो डॉक्टर, आज के इस सनस्क्रीन मास्क पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, और अगर हमारे व्यूअर्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे इलाज कराना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको संपर्क कर सकते हैं? जी, सो मैं ज़रूर ये मौका लेना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से, एंड इन जनरल पब्लिक को ये मैं मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सी, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड बहुत निगलेक्टेड है स्किन केयर। तो स्किन का खास ध्यान रखिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने बताई, क्या क्या हमें रूटीन फॉलो करना है, उसका खास ध्यान रखिए। एंड स्किन केयर रूटीन भले हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे शुरू में, बिकॉज हमने कभी किया नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम शुरू करते हैं तो विद इन अ मंथ वी विल फील दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। जैसे नहाना है, ब्रश है, वैसे ही स्किन केयर रूटीन पार्ट हो जाता है। तो इससे आगे आपको बहुत फायदा होगा। अभी आप याद नहीं करेंगे, 10 साल के बाद आप याद करेंगे कि हमने ये शुरू किया था और ये हमको बेनिफिट हुआ। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली। एंड सी, मैं प्रैक्टिस करता हूँ बोरिवली वेस्ट में, क्लिनिक का नाम क्यूटीलाइफ है। हम डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी सारे प्रोसीजर्स करते हैं। स्किन का कुछ भी डिजीज़ रहा तो हम ट्रीट करते हैं। एडवांस्ड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है, फिलर्स है, बोटॉक्स है, थ्रेड्स है, मेडिफेशियल्स है, हाइड्राफेशियल्स है। सो देर इज़ अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स दैट वी डू, बट ओनली जिनको ज़रूरत है उनको हम रेकमेंड करेंगे। सो किसी को भी कंसल्ट करना है तो क्यूटी लाइफ क्लिनिक बोरिवली वेस्ट इज़ द प्लेस वेयर वी प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया और इतने important सुझाव दिए, and I'm sure all our viewers are going to be benefiting with all the information that has been shared through the Sunscreen Mask Special podcast. So thank you very much for joining in. Thank you, Pooja. It was a pleasure to join you. Likewise, Doctor. Thank you very much. And for more such information on skincare and taking care of your skin, usage of sunscreen, do tune into our channel, Sunscreen Mask Special Podcast. We are available on Instagram, Spotify, Apple, Anchor Podcast. Do make sure to tune in and get more information. That's it for today. Thank you very much.